सही के दो टीटी में रिचेबल मसला गई थी सर हाँ अच्छा दोबारा का मोमेंट हाँ आओ का ना दोबारा ओपन करते का ना बस दोबारा तो ओपन कर बे नो जे तशो ए चिकुम यो दे यो एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम देगा ना او د یو لاګین فارم چې کوم دی کنه دا غ دی زه ته شو یو منټ ال او دوباره کا چې دا مول څه شو پکې یو مینجمنت سیستم دی کنه ای ټی ایم مینجمنت سیستم دی او یو غ دی نو دې کې چې کوم غ دی کنه اولنه فهم د ای ټی ایم مینجمنت سیستم اوپن کړ ټیک شو एक چې کوم چې هغه د کنه لاګین اباوټ اس فارم دی کسٹمر رجسٹریشن دی ډیپوزټ اماونټ دی لاګین فارم دی دغه شیان مین فارم سرچ ریکارڈ دا تو اوپن کر ٹھیک شو بس کلاو دی کا نا ابھی بات ایسی ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہے نا آپ لاگ ان فارم پہ کلک کر لو ہاں لاگ ان فارم پہ کلک کر لو ڈبل کلک کر دو نا جو لاگ ان فارم نہیں ہے لاگ ان فارم کا جو سولوشن ایکسپلورر نہیں ہے سولوشن ایکسپلورر ٹھیک ہے تو اس پہ سولوشن ایکسپلورر پہ جو ہے نا ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا وہ مطلب وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا ٹیکسٹ باکسز نظر آ رہے ہیں وغیرہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ لاگ ان بٹن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ ہمارے پاس ایک لاگ ان فارم ہے ٹھیک ہے ایک منٹ اچھا تو یہ ہمارے پاس لاگ ان فارم ہے اس میں ہمارے پاس یہ جب آپ اپلیکیشن سٹارٹ کرو گے تو پہلا یوزر انٹرفیس جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہوگا ہمارے پاس تو اس کے ظاہر ہوتے ہی اس میں ہمارے پاس دو بٹنز ہیں ایک یہ دیکھو ایک یہ سائن اپ بٹن ہے جو اپر رائٹ کارنر میں ہے دکھائی دے رہی ہے نا اپر رائٹ سائن اپ بٹن آپ نے کون سا اوپن کیا ہے بالکل یہ دو بٹن ہے تو اور ایک ہی ہمارے پاس یہ دیکھو نا اور یہ جو باقی ہے نا یہ جو فنگر پرنٹ بیس اے ٹی ایم سسٹم اور یہ جو ایک پکچر ہے نا جس میں وہ اے ٹی ایم کا سسٹم شو ہوا ہے نا وہ اوپر جو شو ہوا ہے نا فنگر پرنٹ اے ٹی ایم سسٹم کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دونوں پکچر باکسز ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس پکچر باکس ہے یہ میں نے ویسے پکچر لگائی ہے نا یہ جو پورا ایک یہ جو رائٹ لیفٹ سائڈ پہ ایک بڑا اے ٹی ایم شو ہو رہا ہے یہ بھی ایک پکچر میں نے لگائی ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف ایک خوبصورتی دینے کے لیے نا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا آگے سے جو ویلکم ٹو اے ٹی ایم فنگر پرنٹ بیس اے ٹی ایم سسٹم ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ویلکم ٹو اے ٹی ایم بیسڈ فنگر پرنٹ سسٹم میں اپنی ویڈیو بند کر لوں نا یا بس چلو رہنے چلتی رہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا تو یہ ہمارے پاس لیبل ہے نا ویسے میں نے ایک مطلب ویلکم ٹو اے ٹی ایم سسٹم ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پراپرٹیز کا ٹیب اوپن ہو نا پراپرٹیز کا ٹیب جو سائٹ پہ پراپرٹیز کا ٹیب ہے ایک جو پراپرٹیز کا ٹیب ہے نا پراپرٹیز آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ ویلکم ٹو فنگر پرنٹ بیس اے ٹی ایم سسٹم پہ کلک کر لو نا تو یہ آپ کو دے دے گا نا کہ یہ میرے پاس پکچر باکس ہے یہ دے دیکھو نا میں نے لکھا ہے ویلکم نوٹ پکچر باکس جو پراپرٹیز کا ٹیب ہے اوپر نہیں یہ ایکسپلور کے ساتھ نیچے ایک پراپرٹیز کا ٹیب ہوگا
आपको दिखाई दे दिएगा ना। आप किसी चीज पर क्लिक कर लो ना तो आपको उसकी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी ना, और उसका नाम लिखा होगा वेलकम नोट पिक्चर बॉक्स, लिखा है ना ये ऊपर। आप इस तरह कर लो ना, जो वेलकम टू फिंगरप्रिंट बेस्ड एटीएम सिस्टम जो वर्ड्स लिखे हैं ना उस पर क्लिक कर लो, क्लिक कर लिए, ठीक है। तो ये जो शो हो रहा है ना वेलकम नोट पिक्चर बॉक्स प्रॉपर्टीज में, जो ऊपर ऊपर शो हो रहा है ना, ऊपर ऊपर बिल्कुल प्रॉपर्टीज के साथ, प्रॉपर्टी सोशल एक्सप्लोर के नीचे तो प्रॉपर्टीज है ना। वेलकम नोट पिक्चर बॉक्स, ठीक है। तो पिक्चर बॉक्स का मतलब है ना कि ये एक मेरे पास पिक्चर बॉक्स है। पिक्चर बॉक्स में क्या होता है कि इसमें हम कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो बड़ा एटीएम सिस्टम जो एटीएम उस पे रेड रेड लिखा है ना, ये भी पिक्चर बॉक्स है। ये देखो अगर आप उस पे क्लिक कर लो ना तो प्रॉपर्टीज में लिखा नजर आएगा एटीएम अदर पिक्चर बॉक्स। तो ये एटीएम पिक्चर बॉक्स लिखा है ना। तो जो 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 मैंने जो लिखा ना एटीएम अदर, तो ये मैंने वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है ना, मतलब इसका कोई नाम हो ना। और पिक्चर बॉक्स इसलिए लिखा है ना ताकि ये जाहिर हो कि ये पिक्चर बॉक्स है। और पिक्चर बॉक्स कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ये अब जो एक जो प्ले का निशान नजर आ रहा है ना, जो नहीं 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 वो प्ले का नहीं। जब आप एटीएम सिस्टम पे क्लिक कर लो ना तो ऊपर साइड पे एक एरो की नजर आएगी छोटी सी, आप उस पर क्लिक कर लो, एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ना, तो उस पिक्चर बॉक्स टास्क, हाँ तो उसमें आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सही है, यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से भी करिए, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। सही है, तो ये मैं वैसे समझा रहा हूँ ना। ये जो देखो ना जो ऊपर है ना, जो फिंगरप्रिंट बेस्ड एटीएम सिस्टम बड़ा बड़ा लिखा है, ये भी पिक्चर बॉक्स है। ये मेन हेडर पिक्चर बॉक्स है। मेन हेडर मतलब मेरा मेन हेडर और पिक्चर बॉक्स, आप सिर्फ मैंने सब कुछ के साथ जो जो मतलब इसमें इसमें बहुत से टूल्स हैं ना, टेक्स्ट बॉक्स भी है, लेबल्स भी हैं, ठीक है, पिक्चर बॉक्सेस भी हैं, बटन्स भी है ना, ठीक है। तो मैंने पहले उसका नाम लिखा होगा कि ये कौन सी चीज है, और इसके बाद इसको लिखा होगा कि मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक उसको नाम दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा होगा कि ये कौन सी चीज है, ये पिक्चर बॉक्स है, बटन है, कुछ भी है ना। तो आप ये देखो ना, ये साइन अप बटन पे क्लिक कर लो। हाँ कर्सर उस पे कर लो ना, तो आपको प्रॉपर्टीज में नजर नजर आएगा साइन अप बटन, नजर आ रहा है साइन अप बटन प्रॉपर्टीज में। इस तरह ये अबाउट अस पे क्लिक कर लो तो लिखा होगा अबाउट अस बटन। तो अगर आपसे पूछे ना कि आपका मतलब आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो आप उनको किसी भी क्लिक कर लो ना, तो आपको ये प्रॉपर्टी में सीधा नजर आएगा कि ये साइन अप का बटन है, ये अबाउट अस का बटन है, ये क्लोज का बटन है। ये देखो क्लोज पे क्लिक कर लो, ये एक्स पे, ये एक्स नहीं है, जो बड़ा सा क्लोज बटन, ठीक है। हाँ तो मैं अभी उसके अभी नीचे आ जाओ ना, लॉग इन लिखा है ब्लैक ब्लैक कलर में, लॉग इन लिखा है ना, जो ब्लैक में बड़ा लिखा है लॉग इन, LOGIN बड़ा लिखा है। तो तो इस पे क्लिक कर लो तो नजर आएगा आपको लॉग इन टाइटल लेबल। तो ये मेरे पास लेबल है। लेबल मतलब जो हमारे पास आप कोई फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें आता है नेम, नेम इज इक्वल टू, उसमें उसके साथ एक बॉक्स आता है ना, और उसमें आप नाम लिखते हो। तो ये जो नेम लिखा है ना NAME, ये लेबल है, ठीक है, किसी चीज को जाहिर करने के लिए, नाम नाम देने के लिए, ठीक है। वैसे लेबल होता है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास लेबल है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लो नीचे, जो खाली जो खाली डब्बा है, ये जो यूजर आईडी, हम यहाँ यूजर आईडी इंटर करेंगे। ये हमारे पास जो इसके नीचे ना पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इसके नीचे है लॉगिन बटन, लॉगिन का बटन है, नजर आ गया ना, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, तो टेक्स्ट बॉक्सेस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, उसमें हम टेक्स्ट इंटर करते हैं। तो यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स में हम यूजर आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हम पासवर्ड इंटर करेंगे। बात समझ आई गई ना। इसके साथ जब हम
जी। आ, उसमें राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स है, और एक लेबल भी है, लॉग इन जो लेबल है, ये यूजर आईडी जो लिखा है, यूजर आईडी USER ID, तो ये भी लेबल है, ठीक है। समझ आ रही है नहीं इसकी, ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। हाँ, इसके नीचे जो लॉगिन बटन है ना, अगर हम रन टाइम में, मतलब ये स्टार्ट को प्रेस कर ले ना, जो ग्रीन स्टार्ट का बटन है उसको प्रेस कर ले और रन टाइम में लॉगिन पे क्लिक कर ले, तो हमारे पास जो भी यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा, वो जो हमने यहाँ लिखा होगा ना, तो वो डेटाबेस के साथ मैच करेगा। अगर डेटाबेस में वो मौजूद होगा तो भी लॉगिन हो जाएगा। समझ आ गई इसकी, ठीक है। तो इसके पीछे इसके पीछे मैंने कोडिंग की है ना। आप किसी भी, मतलब ये ना, आप ये लॉगिन बटन पे अगर डबल क्लिक कर लो, आप डबल क्लिक कर लो इस पे, तो कोड ओपन हो जाएगा। इस लॉगिन बटन पे डबल क्लिक कर लो, तो उसका कोड ओपन हो गया। ट्राई ट्राई और माई एसक्यूएल कनेक्शन और माई एसक्यूएल कमांड, माई एसक्यूएल डेटा रीडर, ये ओपन हो गए ना। ये आप लॉगिन बटन जो है ना, लॉगिन बटन LOGIN जो ब्लू, ये यूजिंग सिस्टम, ये कौन से हैं? मेरे पास तो ट्राई वाला है, आपके पास? हाँ, ट्राई है ना। यूजिंग सिस्टम तो ऊपर है ना, यूजिंग सिस्टम तो ऊपर है ना। मैं जो, जहां ये प्राइवेट वॉइड लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक, आप जिस भी बटन पर क्लिक करोगे ना, ये देखो, आप लॉगिन बटन पर डबल क्लिक करोगे ना, तो आपका कर्सर जो है ना, वो उसी कोड में पहुंच जाएगा। तो इसका फायदा ये है ना कि आप हर बटन के लिए अलग अलग कोड कर सकते हो। समझ आ गई ना बात, ठीक है। तो हमारी तो मैं ये समझा, तो इसके बाद मैंने यहाँ ये कोड लिखा है लॉगिन के लिए, ठीक है। जी जी। इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ ना, ठीक है। आपको मतलब बेसिक समझ आ गया है ना, आगे फिर बाद में हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है ना, तो अगर देखें ना, तो हमारे पास पहले पहले ये जो यूजिंग सिस्टम और ये जो है ना, ये आपने देखे होंगे ना। एक मिनट, ये देखो, आप आपका कर्सर को पूरा ऊपर ले जाओ और लिखा है स्टार्ट में एक नंबर पे, लाइन नंबर 1 पे लिखा है यूजिंग सिस्टम। यूजिंग सिस्टम भी यूजिंग, जो जो ब्लैक कलर के है ना, यूजिंग ब्लू और इसका ब्लैक कलर के सिस्टम, ठीक है। और जो ब्राउन या ग्रे कलर के है ना, वो इस कोड में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वैसे लिख के है। जब आप उसका कोड इंक्लूड करोगे ना, तो ये खुद बहुत ही ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। सही है। तो इसके बाद इसका मतलब ये है ना, आपने सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम स्पेस STD ये यूज किया है ना। हाँ, तो यूजिंग सिस्टम का मतलब ये है ना कि हमारे पास एक सिस्टम की लाइब्रेरी मौजूद है, सही है। तो हम उस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। यूजिंग का मतलब यूजिंग, इस्तेमाल करना। ए सिस्टम का एक नेम स्पेस, मतलब ये हमारे पास पिछले से पहले से एक क्लास लिखी गई, एक लाइब्रेरी लिखी गई है, ठीक है। सही है, ये हमने नहीं लिखी, ये ऑटोमेटिकली हम यूज कर रहे हैं वो लाइब्रेरी। हाँ, ये खुद है, ये सॉफ्टवेयर में इस तरह सी प्लस प्लस में जो आपने यूज किया है ना, यूजिंग नेम स्पेस STD यूज करते हैं ना। और एक लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड, क्या होता है हैश इंक्लूड? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब लिखेंगे ना यूजिंग नेम सिस्टम, तो आपके पास सिस्टम की लाइब्रेरी, जो नेम, ये अगर कर्सर उस पे कर लो ना, तो लिखा होता है नेम स्पेस सिस्टम। तो नेम स्पेस पूरा एक मतलब कोड होता है, पूरी एक लाइब्रेरी होती है, पूरा एक क्लास होता है, ठीक है। उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ कोड है ना जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है, नीचे। इसके बाद कोड लाइन नंबर 9 पे लिखा है यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स। तो जब हम ये कोड लिखेंगे ना,
ठीक है। तो हमारे पास ये जो लॉग इन फॉर्म डिजाइन नहीं है, जो जो मैंने जो डिजाइन बनाया ना, तब ये यूजेबल होगा। अगर हम ये यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, अगर हम ये लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये डिजाइन नहीं बना सकते। समझ आ गई इसकी? डिजाइन के लिए ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। सही। इसके बाद हमने लिखा है यूजिंग माई एसक्यूएल डॉट डेटा डॉट माई एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये लाइब्रेरी ये यूजिंग जो ये मैंने इसलिए लिखी है ना, ये जो कोड लिखा है कि अगर हम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे तो फिर ये कोड इंक्लूड करेंगे। अगर इसके लिए मतलब ये हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, ये एक पूरा लाइब्रेरी है ना। सही है। तो ये हमारे पास पूरे एक मिनट, ये तो ये हमारे पास पूरी एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी को हम माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी को यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, विजुअल स्टूडियो में, एक मिनट इनको चुप कराओ ना, मुझे भी उनकी आवाज आ रही है। बिलाल, बात ये ना कि हमारे पास जो है ना माई एसक्यूएल डेटाबेस तो मैंने बनाया है ना, ठीक है। तो इस डेटाबेस को मैंने इसके साथ इंटरफेस भी करना है ना, मतलब बैक एंड पे इसके साथ अटैच तो करना है ना डेटाबेस को। सही है। तो इस डेटाबेस के डेटा को यूज करना इस कोड से होता है। अगर हम ये कोड यूज नहीं करेंगे तो हमारा ये डेटाबेस यूज नहीं होगा। सही है, समझ आ गई बात? तो इसके लिए तो माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करने के लिए हमें ये कोड लाजमी लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ये देखो इसके बाद ये लिखा है ना नेम स्पेस एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी तुम्हें ये एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ठीक है, एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने एक अलग से अपने लिए एक कोड बनाया है ना, ठीक है। अब कोई भी विजुअल स्टूडियो में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे ना, या ऐसी तो उसको एक नाम देते हैं ना कि ये एरे का प्रोग्राम है, ये स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आप नाम दोगे तो वो सीधा नेम स्पेस बन जाएगा। नेम स्पेस में हाँ आप मुख्तलिफ कोड इंक्लूड कर सकते हो एक साथ, ठीक है। ये नेम स्पेस जो है ना वो मुख्तलिफ कोड का मजमुआ होता है। समझ आ गई ना बात ये? ठीक है। तो हमारे जितना भी कोड है ना उसका सारे का नेम स्पेस एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम होगा। सही है, समझ आ गई ना? इसके बाद हमने लिखा है ना 14 पे लिख लो। ये देखो, ये आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हो ना और उसको कोई नाम देते हो ना, लॉग इन फॉर्म, जो मैंने ये खुद दिया है लॉग इन फॉर्म, और इसके साथ कोलोन फॉर्म, यानी इसका टाइप कौन सा है। सही है। ये अगर आप फॉर्म पे कर्सर कर लो ना, फॉर्म पे FORM पे फॉर्म पे कर्सर कर लो ना, तो आपको लिखा नजर आएगा क्लास सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म डॉट फॉर्म्स। सही है। तो हम जब तक ये जो कोड नंबर 9 पे यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म अगर इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास ये कोड फिर एरर देगा। सही है। तो फॉर्म्स को यूज करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए ये यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स लिखना जरूरी है। समझ आ गई इस बात की? इसके साथ हमारे पास जो है ना, इसके बाद मैंने लिखा है ना पब्लिक। पब्लिक होता है मतलब ये क्लास हर जगह यूज हो सकता है, ठीक है। पब्लिक का मतलब पब्लिक होता है ना, ठीक है। इसके बाद पार्शियल क्लास, ठीक है। सही है। तो इसका भी ये मतलब है कि ये क्लास मतलब हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज करें, पर पब्लिक पार्शियल, ठीक है। इसके बाद ये क्लास और लॉग इन फॉर्म, ठीक है, ये खुद ही जनरेट हो जाता है। ये जो है ना ये कोड नंबर 14 पे लाए जो कुछ भी है ना, एक मिनट बिलाल, 332 87 55 155 3200 8755 अच्छा। तो बिलाल जो है ना, ये जो पब्लिक पार्शियल क्लास लॉग इन फॉर्म, आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हो ना तो ये खुद बहुत ही क्रिएट हो जाता है ये कोड, ठीक है। इसके बाद जो लाइन नंबर 15 पे देखो, मैं हाँ ये खुद बहुत क्रिएट होगा। आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करोगे ना, सही है, तो ये पब्लिक फॉर्म पब्लिक ये खुद बहुत ही क्रिएट हो जाएगा।
ये क्लास खुद बहुत क्रिएट हो जाए। आप कोई भी मतलब न्यू फॉर्म क्रिएट कर लो ना, तो आपके साथ ये आप देखो ना। मैं हाँ, ये देखो ना। आप फाइल पे क्लिक कर लो, फाइल पे। ये ऊपर जो एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे फाइल, फाइल के बाद ये कर लो, न्यू पे क्लिक कर लो। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर, कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं ना, सॉरी यार। हाँ, ये जो है ना, सॉरी। प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लो। ये जो एड विंडोज फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक कर लोगे ना, ठीक है। तो ये देखो, ये विंडो फॉर्म, इसके साथ जो नीचे नेम लिखा है, नीचे नेम लिखा है, नेम के साथ form1.cs लिखा है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। फिर 8 क्लिक कर लो। 8 क्लिक कर लो। क्लिक कर लिया ना, तो एक नया फॉर्म ओपन हो गया। इस पे डबल क्लिक कर लो आप। डबल क्लिक कर लो, तो ये देखो लाइन नंबर 13 पे क्या है, क्लास फॉर्म 1। फॉर्म 1 अपना नाम है ना, जो मैं हमने दिया था, और फॉर्म, ये नाम। तो अभी इस फॉर्म को आप क्लोज कर लो। ये तो मैंने वैसे आपको सिखाने के लिए ना, ठीक है। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, सही है। तो लाइन नंबर 16 पे देखे ना, इसमें हमने एक लिखा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो सी प्लस में आपको पता है ना, कोई भी स्ट्रिंग मतलब ए बी सी डी, और इसको डबल कामा में बंद करना, ठीक है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं ना। तो स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, माई कनेक्शन, ठीक है, सही है। और इसको मैंने एक स्ट्रिंग दिया है, और इस स्ट्रिंग के ये देखो, इसके 3 टाइप्स हैं। मेरे पास 4 टाइप्स है ना। मतलब आप कोई भी डेटाबेस होगा ना, आप आपसे डेटा सोर्स मांगेगा कि आप किस, मतलब आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हो ना, वो आपके अगर इसी कंप्यूटर में स्टोर होगा डेटाबेस, ठीक है, तो उसको कहते हैं लोकल होस्ट, सही है। अगर इसी कंप्यूटर में स्टोर होगा, उसको कहते हैं लोकल होस्ट। अगर किसी रिमोट कंप्यूटर से आप डेटाबेस को यूज कर रहे हो ना, तो इसको कहते हैं रिमोट होस्ट। तो यहाँ अगर जो डेटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट है ना, तो अगर आप इसी को यूज करो तो इसी कंप्यूटर में डेटाबेस मौजूद है तो लोकल होस्ट। अगर इसी कंप्यूटर में डेटाबेस मौजूद नहीं तो आप उसी डेटाबेस का आप आईपी एड्रेस यहाँ लिखोगे, सही है। तो आपका, इसके बाद आपने पढ़ा है ना उसमें जो डेटा कम्युनिकेशन, नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पोर्ट्स का पढ़ा है ना। तो आप तो इस डेट माई एसक्यूएल एक पोर्ट यूज करता है ना, 3306, 3306, सही है। तो ये पोर्ट भी आप लिखोगे माई एसक्यूएल। इसके बाद यूजर नेम, ये बाय डिफॉल्ट रूट होता है, ठीक है, सही है, ताकि आपका डेटाबेस एक्सेस हो। मेरे पास पासवर्ड है, लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो वो छोड़े, ठीक है। हाँ, डेटाबेस को जो आपने क्रिएट किया है ना, उसको एक अपना यूजर नेम होगा, ठीक है, सही है। तो ये लोकल होस्ट पे ये रूट का डेटाबेस है, ठीक है। इसके बाद ये देखो ना, पब्लिक लॉगिन फॉर्म लिखा है। ये मेरे पास एक मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड में, इस मेथड मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, समझ आ गई ना फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है, अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फिर वो खुद बहुत ही, मतलब जो भी उसमें कोड होता है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाता है ना, सही है। तो इसके बाद लिखा है ना, इस फंक्शन में लिखा है इनिशियलाइज कंपोनेंट। इनिशियलाइज कंपोनेंट ये फंक्शन लाइब्रेरी में मौजूद है, यूजिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम यूजिंग सिस्टम, उस लाइब्रेरी में ये कोड मौजूद है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब स्टार्ट क्लिक करोगे, स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट, ये ग्रीन कलर का जो टेब उसके अंदर बना हुआ है, तो आप जब क्लिक करोगे तो पहला पहला कोड जो एग्जीक्यूट होगा ना, वो इनिशियलाइज कंपोनेंट होगा,
ये कोड पहले से लिखा गया है। इनिशियलाइज कमांड का मतलब ये है कि इस कोड को इंस्टार्ट कर लो यहां से। समझ आ गई इस बात की? ये कोड यहां से इनिशियल स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है ना टाइमर डॉट स्टार्ट। टाइमर डॉट स्टार्ट स्टार्ट का मतलब ये है ना कि मैंने एक अब लॉगिन फॉर्म डॉट सी एस डिजाइन पे आ जाओ। नहीं वो आप उस पे जो जो आपके साथ वो फॉर्म अपीयर हो जाए ना, जो विजुअल वो टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाए ना, आप उस पे आ जाओ। नहीं स्टार्ट नहीं क्लिक ना करो, सिर्फ और सिर्फ उस जो टेक्स्ट बॉक्सेस और जो जो मैंने पिक्चर बॉक्स बनाए थे ना, वो आपके पास अपीयर हो जाए। वो अपीयर हो गया आपके पास? नहीं बैक में ना जाओ, आप इस तरह कर लो ना। प्रोग्राम और विंडो को ओपन ना कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो ना। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं है? सोल्यूशन एक्सप्लोरर को में लॉगिन फॉर्म को क्लिक कर लो, डबल क्लिक कर लो, आ गई लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म जो आ गया ना, तो तो उसमें आप नीचे एक देखो, मैंने एक टाइमर ऐड किया है। वाइट टाइमर लिखा है ना, वो घड़ी बनी हुई है, ठीक है। ये जो वो वाइट जगह में, वाइट जगह में टाइम नहीं, टाइमर नहीं, टाइम नहीं। इस जो लेफ्ट साइड पे आ जाओ, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाओ। जो वाइट जगह, वो लॉगिन फॉर्म से नीचे, लॉगिन फॉर्म का जो एरिया है ना वो ब्राउन कलर, उससे नीचे एक वाइट एरिया आ रहा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं है, उसके नीचे एक लिखा होगा, एक टाइमर लिखा होगा। उससे भी नीचे एक टाइम लिखा है ना, उसी नीचे देखो आपको एक चीज नजर आएगी, वाइट एरिया है, वाइट एरिया। होगी यार, जरूर होगी, ऐसे हो नहीं सकता। हाँ व्हाइट कलर में लिखा है ना टाइमर। तो ये टाइमर जो है ना, ये मेरे पास घड़ी होती है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करो ना, तो आप ये देखो ना, प्रॉपर्टीज, नेम लिखा है टाइमर, लिखा है ना नेम टाइमर प्रॉपर्टीज में, ठीक है। लिखा होगा नेम और टाइमर। आ और बिल्कुल उसी नीचे आ जाओ ना, थोड़ा थोड़ा नीचे देखो, नेम लिखा है। बिहेवियर लिखा है? बिहेवियर कहाँ से लिखा है? नहीं, हाँ नेम डिजाइन में देखो, डिजाइन में। और बिहेवियर में देखो, इंटरवल लिखा है 1000। तो इसका मतलब है 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये मिली सेकंड में होता है, ठीक है। तो मतलब ये ना, जब ये टाइमर स्टार्ट होगा ना, तो ये हमारी जो घड़ी होती है ना, वो एक एक सेकंड में टिक करती है ना, ठीक है। तो इंटरवल 1000 मिली सेकंड का मतलब है कि ये टाइमर हर सेकंड बाद चेंज होगा। ये नहीं मतलब ये आम तरीके की वो घड़ी मैंने बनाई है ना, एक टाइमर क्लॉक बनाई है, ठीक है, डिजिटल क्लॉक। सही है, समझ आ गई इसकी? अच्छा फिर कोड में चले जाओ। हाँ लॉगिन वाले में आ गया। तो लाइन नंबर 20 पे देखो, टाइमर डॉट स्टार्ट। तो ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये स्टार्ट एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और ये जब एग्जीक्यूट होगा ना टाइमर, उस टाइमर का नाम है, और स्टार्ट मतलब स्टार्ट हो जाओ टाइमर, ठीक है। इसके बाद देखो ना, ये मैं आपको लॉगिन की समझा रहा हूँ ना, बाकी जो भी कोड है ना वो इस तरह मतलब रिपीटिशन होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको, क्योंकि इस तरह का मैं अब एक एक कोड समझाने लगूँ ना, ठीक है, तो अब तो इतवार तक मुश्किल से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सही है, हाँ। तो अभी मैं कुछ आपको, हाँ हाँ नहीं ये वो नहीं पूछते ये, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है ना, आप अगर लॉगिन बटन को क्लिक कर लो ना, डबल क्लिक कर लो ना, तो ये लिखा है ना लाइन नंबर 23 पे, प्राइवेट वॉइड लॉगिन, लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्स ई, ठीक है, ये लिखा है ना। तो इसका मतलब ये है ना, लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो आप जब रन टाइम में लॉगिन बटन को क्लिक कर लो ना,
तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ आ गई? हाँ, ये नीचे वाला जो लॉगिन बटन में है, ट्राई ट्राई और ट्राई के बाद जो भी कोड लिखा है ना, ये एग्जीक्यूट होगा। तो जब आप लॉगिन बटन को क्लिक करते हो ना, तो ये क्लिक इवेंट जनरेट होता है। इवेंट मतलब ये ना, एक फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, फंक्शन मुराद कर लो। सही है? समझ आ गई ना? तो आप जब लॉगिन बटन को रन टाइम में क्लिक करते हो ना, तो ये ट्राई के बाद जो भी कोड है ना, वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? तो और ये मैंने लिखा है ना, एक ट्राई लिखा है, और ट्राई के नीचे अगर आप देखो ना, बहुत नीचे देखो आप, तो एक मैंने कैच भी लिखा है लाइन नंबर 57 पे, 57 पे कैच 57। तो ये एक ट्राई कैच ब्लॉक है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ना कि अगर इस कोड में कोई भी एरर जनरेट हो, तो मैं वो रन टाइम में वो एरर कैच कर लूं। समझ आ गई? मतलब मैं इस कोड को जो कोड है ना, ट्राई बॉक्स ट्राई में लिखा है ना, जो ट्राई के आपको ट्राई का कोड है ना, वो लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर 56 तक है ट्राई का, और इसके बाद कैच का कोड है। सही है? तो ट्राई में जो भी कोड लिखा है ना, तो वो पहले एग्जीक्यूट हो, अगर उसमें कोई एरर आए तो मैं इसको कैच कर लूं कैच ब्लॉक के साथ, ताकि मेरे पास जो भी एरर्स आ जाए ना, वो मैं मतलब सही तरीके से हैंडल कर सकूं। ठीक है? ये इसको कहते हैं डिबगिंग। मतलब कैचिंग, एरर स्केचिंग है ना, एरर्स को मैंने कैच करना है, ताकि मैं वो इन एरर्स को सही तरीके से मैनेज करता रहूं। इसके बाद जो है ना, हमारे पास ट्राई के बाद लिखा है माई एसक्यूएल कनेक्शन, ब्लू कलर में 27 में लिखा है, 27 लाइन पे लिखा है, लाइन नंबर 27 के देखो ना, माई एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है? ये मैंने पास एक क्लास, जो जो मैंने यूजिंग माई एसक्यूएल डेटा लिखा था ना, वो यूजिंग वाला, तो मैंने वो एक लाइब्रेरी को एक्सेस किया था, माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी। ठीक है? तो माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी एक्सेस करनी, उस माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी में मुख्तलिफ क्लासेस मौजूद होती है। ठीक है? उसमें एक क्लास है माई एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है? और इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट एक फंक्शनल चीज होती है। ठीक है? ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया माई माई कनेक्शन, माई कॉन। ठीक है? और फिर इसके बाद न्यू माई एसक्यूएल कनेक्शन, और ब्रैकेट में माई कनेक्शन जो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की थी। सही है? जो स्ट्रिंग क्रिएट की थी, स्ट्रिंग आपको समझ आ गई ना, वो स्ट्रिंग जो मैंने, वो पासवर्ड और ये वगैरह, वो स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग, उसमें जिस तरह हम किसी फंक्शन में वो पैरामीटर्स डालते हैं ना, सही है? तो माई एसक्यूएल कनेक्शन में मैंने ये वो पैरामीटर डाल दिए, और जब ये कोड एक्सेस होगा ना, तो मेरा डेटाबेस ओपन हो जाएगा बैकएंड पे। ठीक है? अगर मैं वो मेरे पास वो स्ट्रिंग नहीं हो ना, या मेरे पास जो जैसे हमारे पास वो पासवर्ड का एरर आ रहा था ना, तो वो इसलिए आ रहा था कि मेरे पास इस डेटाबेस में कोई पासवर्ड नहीं था, और हमारे पास जो डेटाबेस पासवर्ड नहीं था, लेकिन मैं पासवर्ड यूज कर रहा था, तो वो एरर दे रहा था। सही है? तो माई कनेक्शन जो है ना, वो मैं एक फंक्शन में पैरामीटर डाल रहा हूँ। सही है? और उस फंक्शन के पैरामीटर के जरिए वो एक्सेस होगा आगे। सही है? इसके बाद जो है ना, मेरे पास लिखा है ये तो माई एसक्यूएल कनेक्शन के साथ मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, यूजर नेम करेक्ट है, लोकल होस्ट भी करेक्ट है, पासवर्ड भी करेक्ट है, पोर्ट भी करेक्ट है। ठीक है? अगर ये चीजें करेक्ट नहीं है, तो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ये बात समझ लो। सही है? इसके बाद डेटाबेस के कनेक्शन तो बन गया। ठीक है? उसके बाद मेरे पास जो है ना, एक उसको डेटाबेस को कोई कमांड तो देनी है ना, कि मैंने इस डेटाबेस से क्या कुछ मांगना है। ठीक है? तो इसके लिए मैंने 28 नंबर पे लिखे माई एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट कमांड, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करते, मतलब इंटीजर a इज इक्वल टू 3, तो ये वही चीजें हैं सारी। इसके बाद इज इक्वल टू न्यू, न्यू एक मैंने, जब भी न्यू आएगा ना, तो इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है?
ऑब्जेक्ट का मतलब है ना एक वेरिएबल के मतलब एक वेरिएबल क्रिएट करना, सही है। तो इसके बाद मैंने लिखा है ब्रैकेट्स में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एटीएम सिस्टम डॉट स्टाफ प्रोफाइल वेयर स्टाफ आईडी is equal to this dot user id text box and password is equal to this dot password text box dot text। और इसके बाद मैंने दूसरा पैरामीटर दिया है माई कनेक्शन, माई कॉन, ठीक है। तो जो रेड जो डबल कामा में जो लिखी है ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ जो कामा तक जो जो माई माई कॉन से पहले एक कामा नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो मेरे पास जो माई एसक्यूएल कमांड नहीं है इसमें हम दो पैरामीटर डाल सकते हैं। एक हमने क्यूरी डालनी है, क्या क्यूरी, डेटाबेस से हम जो कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं ना उसको कहते हैं क्यूरी, उसको क्या कहते हैं क्यूरी, जो डेटाबेस हम जो कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं। और माई काउंट का मतलब क्या है कि हम किस डेटाबेस से कर रहे हैं। माई कनेक्शन जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ना उससे पहले सेलेक्ट कमांड से पहले जो माई एसक्यूएल कनेक्शन माई कॉन का जो वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें हमारे पास वो डेटाबेस आ जाएगी। और इससे पहले मैं क्यूरी कर लूंगा कि हेलो 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 हेलो। Dishana, ami dawai she nikriji drasi wa warju ni megante she. Wai nikriji ramandi. वालेकुम सलाम बिलाल भाई शरंगे नो। अच्छा बस बस सही देखा ना, कसे बकाल कहूँगा ना अब तो कोड खुदा से माता ओपन देखा ना, ताता ओपन देखा ना, ठीक शो नो का मोबाइल बाने बस सही देखा ना, ठीक शो। अच्छा बद अगराजी तो वारो का हाँ? अच्छा शशा नो अगदे बेचेर ते कहूँ बस स्काइप पाने सही, बस स्काइप पाने निकाल तरकाऊँ ना, बस सही स्काइप सही, बस स्काइप पाने निकाल कहूँ। अच्छा बिलाल भाई वॉइस कॉल में तो रोको ठीक शो का ना, हाँ सही दे नो वॉइस कॉल उसकी भी आ गई क्वालिटी खई नो 10 से देखा ना उस आवाज को सफा दर्जी का ना नो। तो हमारे पास जो है ना इसके बाद जो है ना ये तो समझ आ गई। तो हमारे पास एक क्यूरी होती है ना, तो क्यूरी का मतलब ये है कि हम डेटाबेस से क्या कुछ मांग रहे हैं। तो इसके साथ आप जो देखो माई एसक्यूएल कमांड के बाद लिखा है सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा है स्टार फ्रॉम। तो सेलेक्ट का मतलब ये ना कि सेलेक्ट कर लो,
और फ्रॉम का मतलब है किस चीज से, फ्रॉम एटीएम सिस्टम। एटीएम सिस्टम हमारे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। और इसके बाद लिखा है डॉट स्टाफ प्रोफाइल। एटीएम सिस्टम हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और टेबल्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो अभी उन इंफॉर्मेशन को हमने सर्च करना है, ठीक है। और हेलो, तो उन इंफॉर्मेशन को हमने सर्च करना है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने यूजर आईडी जो दी है और पासवर्ड जो दिया है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को उनके साथ मैच करना है। जिसके साथ मैच हो गई तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा और उस आदमी का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास याहू आईडी नहीं होती कि हमारे पास हमारे ईमेल आईडी होती है, पासवर्ड होता है और ओपन हो जाता है हमारा अकाउंट, ठीक है। वही फेसबुक उसी तरह का है, ठीक है। हमारे पास एटीएम सिस्टम के टेबल, एटीएम सिस्टम डेटाबेस में स्टाफ प्रोफाइल हमारे पास एक एक टेबल मौजूद है, ठीक है। अगर आपको देखना है ना तो आप अपने डेटाबेस को ओपन कर लो ना, और एटीएम सिस्टम आपके पास ओपन है ना, जो डेटाबेस है ना, उस पे उसके टेबल्स पे क्लिक कर लो, टेबल्स पे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं है ना। जो माई माई स्क्यूल वर्कबेंच आपके पास ओपन है क्या? नहीं। अच्छा सही है, वो फिर मैं टीम व्यूअर पे आपको कराता हूँ ना, वो समझाता हूँ कि ये कौन से हमारे पास टेबल मौजूद है, ठीक है। सही है। तो इसके बाद वियर लिखा है, वियर वियर लिखा है। इसके बाद स्टाफ आईडी, स्टाफ आईडी उस डेटाबेस के स्टाफ प्रोफाइल के टेबल में हमारे पास एक कॉलम मौजूद है। ऐसा करते हैं ना, एक मिनट आप मेरे साथ उस पे कनेक्ट भी हो जाओ, टीम व्यूअर पे कनेक्ट भी हो जाओ, ठीक है। कोशिश करते हैं शायद कनेक्ट हो जाए तो फिर अच्छा होगा, क्योंकि फिर इस तरह को आपको, उस तरह फिर आपको मैं समझा दूंगा कि ये हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास ये कुछ है, ये कुछ है। टीम में आपके वो उसके नहीं रन रन हो रहा यार। ये मन में इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद का ये टूर हो गया ना, वरना फिर काम सही होता। हाँ सही है, नहीं इंशाल्लाह इतवार को कर लेंगे। ये तो मैं आपको मोटा मोटा भी समझा दूंगा ना सब कुछ, ठीक है। फंक्शनलिटी समझा दूंगा तो उसको, तो फिर आपको एक बार रन कर लेंगे ना तो फिर हो जाएगा सब कुछ। हाँ। क्या? अच्छा। हाँ। ना बर्गर तो ना खुरा, ना ना मड़े बखुरा जब तंगसन वो लेट तेरा जी मड़े तो वेट को वो तय वे मड़े खुरी। हेलो। हाँ आवाज मत वर मत आवाज रही। ना ना बिला बेदा से कहू का ना, शिदा स्काइप बंद कहू जेका शे माता इको कीरी सही दे की टीशो जकाल तरकाऊ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बस देखा ना, तावल माई स्किल वर्कबेंच दा देखा ना, दा ओपन करता दा ओपन का माई स्किल वर्कबेंच ओपन करता जो ओपन शी यार। तो गोरा ये बस न्यू कनेक्शन या यो कनेक्शन ओपन का पके दा दे ओपन को का ना, तो गोरा दा जी करी दीवार तब पके
ये जो है ना, ये टेबल्स हैं हमारे पास। तो ये मीटर का दादी का ना, जो मैंने बताया ना आपको, ये देखो, ये आप ये देखो, ये हमारे पास एटीएम सिस्टम है ना, ये तो आप देख रहे हो ना, एटीएम से ये डेटाबेस है, इसमें ये टेबल्स हैं। ये देखो, ये क्लिक करो ना, तो ये टेबल को, ये हमारे पास एक टेबल है बैलेंस, ठीक है। तो आप ये क्लिक करोगे ना, तो उसकी टेबल के सारे वो जो कॉलम्स है ना, वो शो हो जाएंगे। ये बैलेंस आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल, ये इसमें हम ये इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना, ये कस्टमर प्रोफाइल का टेबल है, डिपॉजिट का टेबल है, स्टाफ प्रोफाइल का टेबल, ये देखो, इसमें ये हमारा स्टाफ आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ठीक है। ये देखो, ये सारा कुछ हमने इंटर किया है। ये देखो, ये देखो, द फादर नेम वगैरह सब कुछ इधर आ जाता है। ये देखो ना, ये देखो, ये पासवर्ड वगैरह, ये इमेज कहाँ पड़ा है, ये सारा कुछ, ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये ट्रांजैक्शन टेबल है, ये वगैरह, तो ये मैं आपको समझा रहा था ना कि ये एटीएम डॉट स्टाफ प्रोफाइल, अभी समझ आ गया ना कि ये टेबल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये इसमें एक कॉलम है स्टाफ आईडी का। तो इसके बाद जो है ना, इफ वेयर मतलब है ना, अगर स्टाफ आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट, इस फॉर्म का, ये जो फॉर्म है ना, लॉगिन फॉर्म है, जो यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स में है ना, तो इसमें अगर ये भी वो टीम व्यूअर को हम क्लोज करते हैं ना, क्योंकि मुझे वो आवाज की इको आ रही है, ठीक है। ओके, टीम व्यूअर को क्लोज करते हैं, टीम व्यूअर को आप क्लोज कर दो, ये दे दो, ये क्लोज कर दो, सही है। तो ये जो हमारे पास जो है ना, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो ये देखो, स्टाफ आईडी, अगर यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब ये है ना, इसका यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट नजर आ रहा है ना आपको। तो अगर दिस का मतलब ये ना, इसी फॉर्म का, दिस का मतलब इसी फॉर्म का, इसी फॉर्म का यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स, और उस डॉट टेक्स्ट का मतलब है इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा जा चुका है, सही है। अगर ये स्टाफ आईडी, मतलब ये स्टाफ आईडी के बराबर हो, ठीक है, सही है। और हमारे पास जो पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, इसको ऐलान कर लेते हैं, सही। तो मतलब हमारे पास ये पासवर्ड हो, ये स्टाफ आईडी हो जाता है। तो इसके बाद हमारे जो माई एसक्यूएल डेटा रीडर 29 नंबर पे जो है, माई रीडर 29 नंबर लाइन पे माई रीडर, ये एक दूसरा क्लास है, ठीक है। इसके बाद और ये मतलब माई एसक्यूएल रीडर का मतलब है ना, ये डेटाबेस को रीड करता है, सही है, समझ आ गई रीड करने की। हाँ, तो ये डेटाबेस को रीड करता है। इसके बाद माई कनेक्शन डॉट ओपन, ओपन का मतलब ये ना कि मेरा कनेक्शन डेटाबेस के साथ ओपन कर दो,
और इसके बाद जो है ना माई रीडर, जो माई इसके डेटा रीडर जो है ना जो जो डेटाबेस को रीड करता है ना, सेलेक्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, जो ये क्यूरी है ना इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। मतलब एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन जो है ना, ये जो भी जिस 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 लफ्ज के बाद के साथ हमारे पास पैरेंथेसिस आएंगे ना, ये फंक्शन होगा। तो एग्जीक्यूट रीडर का मतलब ये ना कि इसको एग्जीक्यूट कर लो, मतलब इसको रीड कर लो। समझ आ गई ना? इसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, इंटीजर, आई एन टी मतलब इंटीजर, काउंट, काउंट इंटीजर वेरिएबल है और इसको मैंने असाइन किया है 0, ये 0 से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये देखो 33 पे वाइल माई रीडर डॉट रीड, ठीक है, ये इन दोनों को रीड करता जाए, ठीक है, मतलब ये डेटाबेस को रीड करता जाए, ठीक है। और काउंट प्लस प्लस, और काउंटिंग करता रहे। मतलब ये ना हमारे पास जो स्टाफ आईडी है ना, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड, इन दोनों को ये रीड करता जाए कि ये डेटाबेस में कितनी दफा मौजूद है। सही है। अगर इफ काउंट इज इक्वल टू 1, अगर ये डेटाबेस में एक दफा मौजूद हो और डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हो, तो ये हमारे पास जो हमारा मेन फॉर्म नहीं है उसको ओपन कर ले। अगर ये एल्स इफ, अगर काउंट एक से ज्यादा हो, सही है, मतलब हमारे पास एक रिकॉर्ड दो दफा मौजूद हो डेटाबेस में, डुप्लीकेट रिकॉर्ड मौजूद हो, तो मैसेज बॉक्स का मतलब है डॉट शो, मैसेज, एक मैसेज शो कर ले। इसमें ये शो के हमारे पास जो यूजर आईडी है ना, ये डुप्लीकेट है, मतलब इसकी दो तीन आईडीज मौजूद है इस तरह की, डुप्लीकेट एरर और ओके वार्निंग वगैरह, ये सारा कुछ कर ले। अगर हमारे पास यूजर आईडी या पासवर्ड इनकरेक्ट हो, मतलब ये डेटाबेस में रजिस्टर्ड ना हो, सही है, तो इसको एक मैसेज अपीयर हो जाए ना, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स मतलब एक मैसेज अपीयर हो जाए, डॉट शो का मतलब है शो अपीयर हो जाए, ठीक है, कि एक कि आपका जो यूजर आईडी या पासवर्ड इनकरेक्ट है, आप काइंडली करेक्ट यूजर आईडी या पासवर्ड शो लिख ले, ठीक है। और इसके बाद ये देखो माई कनेक्शन डॉट क्लोज, डेटाबेस के साथ कनेक्शन को क्लोज कर ले। तो ये आप फिर आ जाए लाइन नंबर 37 पे, इफ काउंट इज इक्वल टू 1, सही है। तो इसके साथ जो मैंने लिखा है मेन फॉर्म, जो मेन फॉर्म मेरे पास है ना, मेन फॉर्म, सही है, इसको इसको मैंने वो किया है ना, और इसको मैंने यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स पास किया है, सही है। तो मेरे पास मेन फॉर्म डॉट शो, जब जो लाइन नंबर 40 पे कोड है ना, मेन फॉर्म डॉट शो, इसका मतलब ये कि मेरे पास जो मेन फॉर्म जो है ना, वो शो हो जाए। जब हम जब मैं कोई सक्सेसफुल पासवर्ड इंटर करता हूँ ना, तो हमारे पास मेन फॉर्म शो हो जाता है ना। और ये दिस डॉट हाइड का मतलब ये ना कि लॉग इन फॉर्म हाइड हो जाए। और इसके बाद है ना दिस डॉट यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, इसका मतलब ये ना कि इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, वो क्लियर हो जाए। तो अब आप स्टार्ट क्लिक कर लो, स्टार्ट को। नहीं नहीं, मेन फॉर्म जो है ना, मेन फॉर्म तो मैंने यहाँ क्रिएट किया है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ हम उससे डेटा लेते हैं। ये देखो, अब सिर्फ और सिर्फ उससे डेटा हम फेच करते हैं। बाकी फॉर्म जो है ना, ये मैंने बनाए। अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर लो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे साइट पे हमारे पास फॉर्म मौजूद है ना, अबाउट अस, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डिपॉजिट अमाउंट, लॉगिन फॉर्म, मेन फॉर्म, सर्च रिकॉर्ड सिस्टम, सर्च स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। समझ आ गई? ठीक है। तो हमारे पास अब स्टार्ट, स्टार्ट क्लिक कर लो, स्टार्ट पे क्लिक कर लिया, तो हमारे पास ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास स्टार्ट हो गया? एक मिनट, आपके पास जब स्टार्ट हो जाए, मेरे पास स्टार्ट हो जाए ना, मेरे पास अभी से स्टार्ट नहीं हुआ। एक मिनट, मेरे पास भी तक ये सिंक्रोनाइज हो ना। एक मिनट यार, ये मैं इसको वो कर लूँ।
ये लॉगिन फॉर्म स्टार्ट हो गया ना आपका। तो अभी आप ये जो कर्सर है ना वो यूजर आईडी में अपीयर हो रहा होगा। सही है। आप अभी यूजर आईडी में इंटर कर लो, कोई भी आईडी इंटर कर लो। फॉर एग्जांपल 2244 इंटर कर लो, और इसके साथ पासवर्ड इंटर कर लो, कोई भी पासवर्ड इंटर कर लो, और लॉगिन पे क्लिक कर लो। सही है। तो आपको समझ आ गई ना कि हमारे पास ये यूजर आईडी है, ये पासवर्ड है ना, ये इनकरेक्ट है। समझ आ गई। तो इसके बाद आपको आपको मैं एक पासवर्ड और आईडी बताता हूँ जो मेरे पहले ये डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। वो आप उस पर क्लिक कर लो। स्टाफ प्रोफाइल नहीं है जो डेटा डेटा नहीं नहीं, इसको क्रॉस ना कर लो, लॉगिन को बस। ठीक है, मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बताता हूँ ना, आप वो इंटर करते जाओ। ठीक है, 1 मिनट आप वेट कर लो, 1 मिनट वेट कर लो ताकि मेरे पास वो आ जाए। ये देखो, आप स्टाफ आईडी 1101 दे दो। 01 01 डबल, हाँ, 1101। और दे दो पासवर्ड, दे दो 11BN11BNELE0455। BNELE0455। पासवर्ड किस तरह दे दिया आपने? लॉगिन हो गया तो मेरा पिक्चर अपीयर होगा। हेलो, हाँ, मेरा पिक्चर अपीयर हो गया ना? नहीं, मेरा पिक्चर अपीयर हो गया। हेलो, स्टाफ आईडी 1101, नेम इश्तियाक मरवत, फादर नेम दिलावर खान, जेंडर मेल, पोजीशन प्रोग्रामर, डेट ऑफ बर्थ 1992 221, एड्रेस सरायना औरंग लकी मरवत के पी के। सही है। तो हमारे पास ये साइड पे देखो, अपडेट स्टाफ अकाउंट, क्रिएट कस्टमर अकाउंट, ये बटन जो है ना, आप जब कर्सर उनमें करते हो ना तो ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं ना। अपडेट कस्टमर अकाउंट, डिलीट स्टाफ या कस्टमर अकाउंट, सर्च कस्टमर अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, और नीचे जो है ना लॉग आउट। सही है। तो इस बात की समझ आ गई ना कि लॉग इन किस तरह होता है। तो तो अभी हमारे मेरे पास डुप्लीकेट आईडी मौजूद नहीं है ना। अगर मेरे पास डुप्लीकेट आईडी होगी ना तो ये एरर देगा कि डुप्लीकेट आईडी। सही है। समझ आ गई इस बात की? हाँ। तो अभी इस फॉर्म को, इसको क्लोज कर लो पूरा। वो लॉग आउट कर लो, और लॉग आउट के बाद वो एक्स का बटन नहीं है, वो क्लोज भी कर लो। क्लोज कर दिया। तो लॉग इन फॉर्म की समझ आ गई ना पूरी? जी, अच्छा, आ गई है, गुड। इसके बाद जो है ना, हमारे पास कुछ और कोड भी है ना, लेकिन उस कोड को मेरे ख्याल में अभी अभी समझाना, एक कोड समझाता हूँ आपको। वो लॉग इन फॉर्म पे आ जाओ आप, और जो अबाउट अस और कोड पे नहीं, सिर्फ वो लॉग इन फॉर्म पे आ जाओ जहाँ अबाउट अस बटन और साइन अप बटन अपीयर होते हैं, और क्लोज बटन। नहीं, स्टार्ट ना कर लो ना, वो डिजाइन पे आ जाओ, लॉग इन फॉर्म डॉट सी एस स्लेश डिजाइन आएगा ना। तो साइन अप बटन पे आप वो कर लो, डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक कर दिया। हाँ, तो साइन अप बटन का कोड अपीयर हो गया 69 नंबर पे। सही है। तो है ना। तो अब जब भी साइन अप बटन पे क्लिक करोगे ना, तो साइन अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टाफ का मतलब ये ना साइन अप बटन, तो ये स्टाफ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। समझ आ गई? और दिस डॉट हाइड का मतलब है ना, ये हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म है ना वो हाइड हो जाएगा। सही है। समझ आ गई इसकी?
ये इसके बाद जो 77 नंबर पे है, क्लोज बटन अंडरस्कोर क्लिक। हाँ, ये समझाता हूँ ना, ये एक फंक्शन है ना, रिसेट टेक्स्ट बॉक्सेस एक फंक्शन है ना, ठीक है। ये सिंपल है ना। रिसेट टेक्स्ट बॉक्सेस का मतलब ये है ना कि जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस में जो कुछ भी लिखा है ना वो क्लियर कर दो। लिखा है ना, सेलेक्ट ऑल यूजर आईडी को सेलेक्ट ऑल कर लो, पासवर्ड को क्लियर कर लो। और यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, फोकस का मतलब है ना कि यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स जो है ना कर्सर उसमें अपीयर हो जाए वापस। समझ आ गई ना इसकी। तो रिसेट बस ये मेरे एक फंक्शन। तो 77 पे देखो, क्लोज बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो इसके नीचे लिखा है एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। तो जब हम वो एक एक्स जो बटन है ना जो मैंने क्लोज के लिए यूज किया है, ठीक है। तो इसके साथ ये एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का मतलब है ये एप्लीकेशन, जब आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। सिंपल इंग्लिश की तरह कोडिंग है ना, समझ आ रही है ना सारी कोडिंग। हाँ, ये सी शार्प है, लेकिन ये सारा कुछ सी शार्प, सी शार्प इसको कहते हैं ना। ये लेकिन ये बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप इसको जी बिल्कुल कर रही है ना। वही हमारे पास इफ एल्स लूप है। ये देखो ना, ये एग्जिट और इसके साथ ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। तो ये जहां भी ये कुछ ये पैरेंथेसिस आएंगे ना कि किसी वर्ड के साथ, तो ये फंक्शन होगा हमारे पास। तो फंक्शन हम तो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट फंक्शन। तो एप्लीकेशन मतलब एग्जिट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और एग्जिट फंक्शन जो है ना, ये पहले से लिखा जा चुका है, ये मैंने नहीं लिखा। ये एग्जिट का फंक्शन पहले से लिखा जा चुका है, ठीक है। सही है। तो ये हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज। तो एग्जिट का मतलब है कि ये एप्लीकेशन एग्जिट कर दो। समझ आ गई इस बात की। इसके बाद एक 82 पे है ना, टाइमर अंडरस्कोर टिक। सही है। ये मेरे पास एक इवेंट है ना, मतलब फंक्शन है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम डॉट नाउ, मतलब अभी जो डेट नाउ का मतलब है ना कि अभी जो डेट एंड टाइम है, ठीक है। और इसके बाद डेट लेबल डॉट टेक्स्ट, और जो मेरे पास दो लेबल्स मौजूद है ना लॉगिन फॉर्म डिजाइन पे, ये देखो नीचे आप देखो, मेरे पास दो लेबल होंगे, आपने देखे भी होंगे। एक मेरे पास जो है ना नीचे एक टाइम लेबल है और एक डेट का लेबल है। टाइम का ना टाइम, नहीं नहीं, जो डिजाइन में एक टाइम का लेबल है ना, वो मैं आपको शो करता हूँ ना। आप रन कर लो इस एप्लीकेशन को फिर। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोड यूज कर रहा हूँ ना कि आज का जो भी डेट होगा ना, वो यहाँ डेट और टाइम यहाँ अपीयर हो जाए। समझ आ गई ना इस बात की, ठीक है। तो डेट लेवल में डेट अपीयर हो जाए और टाइम लेवल में टाइम अपीयर हो जाए। इसके बाद जो है ना हमारे पास अबाउट अस बटन अंडरस्कोर क्लिक। 88, नहीं नहीं, आप वो क्लोज कर लो ना। लॉग इन फॉर्म के कोड पे जाओ। तो अबाउट अस बटन आपको मिल गया ना, पेज नंबर कोड कोड नंबर 89 लाइन में अबाउट अस बटन। तो अबाउट अस बटन अंडरस्कोर क्लिक, अगर जब आप अबाउट अस बटन को क्लिक करोगे ना, तो अबाउट अस का फॉर्म शो हो जाएगा और लॉग इन फॉर्म हाइड हो जाएगा। और रिसेक्ट बॉक्सेस टेक्स्ट बॉक्सेस का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से यूजर आईडी और टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है ना, यूजर आईडी पर टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। समझ आ गई ना इस बात की। सही है। तो ये था लॉग इन फॉर्म। सही है। तो ये आप फिर ओपन कर लो। सही है। तो साइन अप पे आप क्लिक कर लो, साइन अप पे उसको स्टार्ट कर लो, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लो। स्टार्ट कर लिया स्टार्ट। साइन अप पे क्लिक कर लो। तो
हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया ना, फिंगरप्रिंट बेस्ड एटीएम सिस्टम स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सही है। तो आप इसमें स्टाफ आईडी डाल दो, नेम डाल दो वगैरह, मेल फीमेल, ये पिक्चर भी डाल सकते हो वगैरह। चलो आपकी वो क्रिएट करते हैं ना, आपके एक आईडी क्रिएट करते हैं ना, 1105 स्टाफ आईडी कर ली आपकी। सही है। आपका फर्स्ट नेम है हजरत बिलाल। आप भी लिखते जाओ, आप भी लिखते जाओ। नहीं नहीं, बस स्टाफ आईडी डबल, जो भी आप करते हो, आप जो भी डालते हो वो डाल दो। स्टाफ आईडी जरूरी नहीं कि 1105 हो। सही है। तो आप ये फॉर्म फिल कर लो। या, या अगर इस तरह करते हैं कि टीवी पे कनेक्ट होते हैं और मैं आपको फॉर्म फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ, या आप फिल कर सकते हो। आप खुद फिल करो, आप खुद फिल कर लो, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लो, आपको एक वो कैलेंडर अपीयर हो जाएगा, आप उसमें डेट सेलेक्ट कर लो, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो वैसे फॉर एग्जांपल के लिए। इसके बाद नाम लिख लिया आपने। आ, 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 सी ने सी भी लिख लिया, और जेंडर सेलेक्ट कर लिया। पोजीशन भी सेलेक्ट कर लो, ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेशन, टेलर वगैरह ये सेलेक्ट कर लो इसमें। फादर नेम भी कर लो। कर लिए। अगर आप इसमें कोई भी वो छोड़ोगे ना, कोई भी चीज छोड़ोगे ना, तो आपका आपको एरर देगा, ठीक है। और वो एरर आपको तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक वो आप इस तरह आप चेक कर सकते हो ना। अभी आप ये छोड़ दो और सेव पे क्लिक कर लो, सेव पे। हाँ, सेव पे क्लिक कर लो। हाँ बिल्कुल। तो ये आपको ये वो एरर दे रहा है ना। अभी आप डिस्ट्रिक्ट को फिल कर दो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दो। हो गया। तो अभी आप सेव पे क्लिक कर लो। ये देखो, तो आप जो कुछ भी फिल नहीं करोगे ना, तो वो आपको एरर देता जाएगा जब तक आप पूरा फॉर्म फिल ना कर लो। आप लास्ट में अगर आप पिक्चर को सेलेक्ट ना कर लो ना, तो आपको वो भी एरर देगा। पासवर्ड को कर लो, ईमेल एड्रेस पे कर लो। कर लिए। जब कर लो तो मुझे बता दो। अभी आप अभी पासवर्ड फिल कर लिया और ईमेल एड्रेस। मुझे पासवर्ड फिल करो, सिंपल पासवर्ड दे दो ताकि फिर लॉगिन करने में आसानी हो। अभी आप सेव पे क्लिक कर लो। ये देखो, तो ये मैंने बहुत ही इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनाया है ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ना, इस तरह से। मतलब आपका कोई भी आपसे कोई चीज ताकि आपके फॉर्म में रहे ना, तो आप इस पिक्चर पे क्लिक कर लो, पिक्चर पे। तो पिक्चर पे क्लिक कर लो ना, तो आप कोई भी अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लो इसके लिए। सेलेक्ट कर लिया। इसको कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लो, और फिर इसके बाद ये आपका पिक्चर यहाँ अपीयर हो जाएगा। और फिर सेव क्लिक कर लो, तो आपका ये डेटाबेस, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। कोई भी यार वैसे का पिक्चर सेलेक्ट कर लो, या फिर डिलीट कर देंगे चलो अकाउंट। लेकिन वैसे उसके लिए सेलेक्ट कर लो ना, ताकि सही आसानी हो जाए। तो सेव पे क्लिक कर लो, अभी ओके क्लिक करो, फिर सेव पे क्लिक कर लो। नहीं, ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर सेव पे क्लिक कर लो, सेव। तो सेव हो गया डेटाबेस। बस सेव हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बैक पे क्लिक कर लो, बैक। तो फिर आप लॉगिन लॉगिन में आ गए। एक मिनट बिलाल, वेट करो। अच्छा, तो अभी बिलाल, हेलो, सुन रहे हो मुझे ना?
तो अपने जो भी यूजर आईडी दिया था और जो भी पासवर्ड दिया था वो इंटर कर लो यहाँ लॉगिन में, इंटर कर लो। और और लॉगिन पे क्लिक कर लो फिर। नहीं, अच्छा आपका सब कुछ मौजूद है उसमें। तो मैं ये समझा रहा था कि इस तरह स्टाफ की आईडी क्रिएट होती है, ठीक है। तो सही है ना, ठीक है। तो तो इसके बाद ये एप्लीकेशन को क्लोज कर लो पूरा। हाँ क्रॉस कर दो, सही है। तो मेरे ख्याल में गाना आज तक यही काफ़ी है ना, ठीक है। तो वो है खुरुश की ना ना, जो मरे खुरो ना ना आती खुरो गाना जो मरे खुरो। एक मिनट आप वेट करने खुद पूरा खुरो लगा मैं मान ना खुर ला जो मरे खुरो शबस सही बस ठीक है दो अच्छे बजाओ बन को मैं तो बस सही है बता से उखरो नहीं मकाना बे उखरो। हाँ दस बिलाल। तो मेरे ख्याल में आज यही काफ़ी है ना, ठीक है। सही है। तो फिर कल इंशाल्लाह फिर 6 बजे से ऑनलाइन होंगे ना, 6 साढ़े 6 7 बजे से, ठीक है। सही है। तो फिर ठीक है, सही है। आप टेक्स कर लेना, मैं फिर भूल जाता हूँ ना, ठीक है। तो आप टेक कर आप मुझे रिमाइंड कर लेना, ठीक है। 6:30 बजे तकरीबन, सही है। तो फिर ऑनलाइन हो जाएंगे और फिर मैं आपको इसका मतलब एक कोड का कोड सारा सारा नहीं समझाऊंगा अभी, ठीक है। कोड का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, समझ तो आ रही है ना सबकी। मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस एप्लीकेशन को हम यूज किस तरह करेंगे, ताकि आपको सिर्फ ये पता हो ना कि ये यूज किस तरह करेंगे। तो फिर आपके से कोडिंग में इतना कोई नहीं पूछेगा, सही है। और कल आप अगर मैं आपको ये वो कर दूं, इस तरह करते हैं ना, अभी टीम व्यूअर पे वो करते हैं ना, सही है। तो आप अगर कर भी बिला साहब को ये दिखाना चाहते हो ये कोड वगैरह, या बिला साहब तो कल नहीं होंगे, छुट्टी होगी कल मेरे ख्याल में। कल बस ठीक है, सही है, मंडे को भी दिखा दो। तो फिर मैं कल पूरा समझा दूंगा ना कि इस एप्लीकेशन को किस किस तरह यूज करते हैं, और सारे का मतलब एक कोड का और रिव्यू भी दूंगा ना, सही है, ठीक है ना। तो मतलब एक रिव्यू हो जाएगा, तो फिर इसके बाद जब ये प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी तो फिर मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा कोड के, कि ये कोड का क्या मतलब है, इसको कोड फिर आपको मैं वो भेज दूंगा, सही है, पूरे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। सही है। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। जी, कौन सी वीडियो? नहीं, ये मैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर दें, सही है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।